topic is regarding article and its use. Article and its use. Yesterday we have discussed regarding the articles and its types also. I have defined article used with nouns and it expresses which points out the person, things, animals, place. So we can say noun. And articles has two parts. One is an definite article. We have discussed it. And second is the definite article. So indefinite article includes and definite article is there. And there is zero article denoted by cross where neither the indefinite article nor the definite article is used. There are some nouns. We do not take definite or an indefinite article with it. So we have discussed this. Indefinite articles are those articles which expresses unspecific things, persons, place. We can say which are not particular. When we say any person, man, it means any man. When we quote an example of a common noun, indefinite articles. Any place, thing, it means common, unspecific, which is not a particular. So within, after that we have discussed also the use of article A, uses of article A. It is 4 uses. We have discussed it yesterday, that it is used with the before the common nouns when it's singular, beginning with consonant sounds, words beginning with vowel sounds, and words beginning with U sounds, and number 3rd is words beginning with was sounds, and 4th was abbreviation beginning with consonant sounds. We have discussed it. And today I am going to teach you again in definite article, but uses of and. Okay? Today we will discuss again in definite article and, as we have discussed article and. And yesterday I wrote a paragraph in which I used all the articles a and the and zero article. I will write again that paragraph. I saw a man in the morning. Full stop. He was having blank. He was having umbrella in his hand. Full stop. Dash man requested me to give blank, again material noun, water to the plants. बेटा मैंने एक पैराग्राफ कल लिखा था और आज भी इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं. तो कुछ बच्चों ने ये बताया था मुझे कि आपने सर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लिखा तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा भी था. He was having an umbrella, ये मैंने सालों खुद ही करके रखे थे. तो यहाँ से मैंने लिखा था the man requested me और वाटर मटेरियल नाउन से पहले मैंने जीरो आर्टिकल लिखा था. बेसिकली हमने जो कल डिस्कस किया, हमने सिर्फ कॉमन नाउन को डिस्कस किया है. मैन इज ए कॉमन नाउन. मैंने सिर्फ इसके यूज को डिस्कस किया था. हमने इससे आगे बात नहीं की थी. कल हमने इसी सेंटेंस को सॉल्व किया था. जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉमन नाउन से पहले, मैन कॉमन नाउन है, वो सिंगुलर भी होना चाहिए, ये सिंगुलर भी है, और इसकी साउंड कंसोनेंट से शुरू होनी चाहिए, और इसकी साउंड मैन कंसोनेंट से बिगिन होती है. तो इसीलिए मैंने कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर होने के नाते और साउंड भी कंसोनेंट से शुरू होने की वजह से मैंने आर्टिकल ए लिखा एज पर द रूल. अब मैंने ये लिखा ही वॉज हैविंग एन अम्ब्रेला. अब मैं पॉइंट नंबर 2 आई डिस्कस करता हूं. यहां से लेकर यहां तक ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई क्या मसला है कि ही वॉज हैविंग एन अम्ब्रेला. ये भी तो कॉमन नाउन है. मैन इज ए कॉमन नाउन, अम्ब्रेला इज ए कॉमन नाउन, बट I used a with
man, common noun, okay, because it is sound begins with a consonant letter, consonant. And I use article an with the common noun umbrella. मैंने umbrella से पहले an इस्तेमाल किया. आज मैं सिर्फ इसी पोर्शन पे बात करता हूं. ये क्या मसला है? तो इसका बेटा मेरा पहला यूज आप देखोगे, फिर आप देखोगे कि सर ने umbrella से पहले an क्यों इस्तेमाल किया था, और man का तो क्लियर हो गया है इस common noun का. An is uses of an, uses of article an. देखो बेटा, बिफोर ए कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है. इन इट सिंगुलर फॉर्म, और ये सिंगुलर होना चाहिए. इन इट इज सिंगुलर फॉर्म. सैम रूल यहां तक इसका भी वही था, बट बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड्स, बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड्स, बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड, जिसकी वजह से मैं इसको यहां पे यूज करता हूं. कॉमन नाउन अम्ब्रेला इज अ कॉमन नाउन. सिंगुलर फॉर्म, सेकंड स्टेप, सिंगुलर फॉर्म, ये तो सिंगुलर है. दो चीजें क्लियर होगी. बिगिनिंग विद वॉवेल साउंड, क्या ये वॉवेल साउंड से शुरू होता है? अम्ब्रेला, एंड आ इज ए वॉवेल साउंड. तो इसीलिए मैंने अम्ब्रेला से पहले एन इस्तेमाल किया, और ये कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, इसके लिए मैंने एन का इस्तेमाल किया. अम्ब्रेला एक ऐसा कॉमन नाउन था जो सिंगुलर भी था, और इसकी साउंड जो थी वो वॉवेल से शुरू हुई, जिसकी बुनियाद पे मैंने आर्टिकल एन वहां पे लिखा. क्योंकि मैंने कल भी अपने इस लेक्चर में आपको कहा कि बेसिकली आर्टिकल डिपेंड्स अपॉन द साउंड्स ऑफ द वर्ड, नॉट द कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट. ये उस लेटर की साउंड अगर वॉवेल होती है तो उसके साथ है. इसकी साउंड भी वॉवेल थी, ये कॉमन नाउन भी था और सिंगुलर भी था, तो मैंने एन इस्तेमाल किया, तो ये क्लियर हो गया. फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ईगल. ओके, तो बेटा मेरा एन अम्ब्रेला. देखो बेटा मेरा ये सब जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ये इसमें फॉल करती है. कॉमन नाउन, एप्पल कॉमन नाउन है, ठीक है. सिंगुलर भी है, सिंगुलर फॉर्म भी है, ठीक है भाई. इसकी वॉवेल साउंड से शुरुआत होती है. एप्पल, आ इज वॉवेल साउंड, तो मैंने इसके साथ एन लिखा. अब मैं ऑरेंज पे जाता हूं. ऑरेंज भी कॉमन नाउन है, कॉमन सा नाम है, और इसकी शुरुआत, इसको ये भी सिंगुलर है, और इसकी साउंड भी ऑरेंज, ऑरेंज ओ से स्टार्ट होती है, तो ये वॉवेल है. तो यही ईगल का है, आ साउंड से स्टार्ट होता है, ये भी सिंगुलर है, एन इस्तेमाल किया. और अम्ब्रेला भी, ये वाला अम्ब्रेला जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करा था, आ साउंड है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो मुझे एन इस्तेमाल करना है. तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी कि सर ने इस कॉमन नाउन से पहले ए क्यों इस्तेमाल किया, और सर ने इस कॉमन नाउन से पहले एन का इस्तेमाल क्यों किया. बस इसलिए इस्तेमाल किया, इसकी साउंड कंसोनेंट से शुरू होती थी, और इसकी साउंड जो शुरू होती थी वो वॉवेल से शुरू होती थी. तो इसी की बेस पे आई यूज्ड आर्टिकल ए विद कॉमन नाउन मैन, एंड इसमें मैंने अम्ब्रेला से पहले आई यूज्ड आर्टिकल एन विद ए कॉमन नाउन अम्ब्रेला. ये पॉइंट आपको क्लियर करता है. सेकंड, दूसरा बेटा मेरा इसका इस्तेमाल है बिफोर द वर्ड्स. ध्यान से, बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच. कुछ ऐसे वर्ड्स जो साइलेंट एच से शुरू हो जाते हैं, वहां पे भी हम एन का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल हियर. एन ऑनरेबल जज. यहां पे एचओ की प्रोनाउंसिएशन जो थी बेटा मेरा, वो ओ वॉवेल से शुरू हो गई. प्रोनाउंसिएशन का, जहां तक प्रोनाउंसिएशन की मैं बात करता हूं, एचओ की प्रोनाउंसिएशन एच साइलेंट रहा और ओ की प्रोनाउंस करना पड़ा, और ओ वॉवेल साउंड है, तो हमने इसके साथ एन रखा. सेकंड, एन ओवर एगो. नंबर थर्ड, एन ऑनेस्ट फेलो. एच साइलेंट रहा, ओ डोमिनेंट हो गया इसमें, एन ऑनेस्ट फेलो. तो ये था इसका सेकंड यूज बेटा मेरा, कि जब भी हमारे साइलेंट एच से वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके साथ हमेशा एन लगता. हो गया दो यूज. पहला ये कि कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर होना चाहिए, वॉवेल साउंड से शुरुआत एन,
और दूसरा वो वर्ड्स जो साइलेंट एच से शुरू हो जाते हैं उनके साथ भी क्या लगता है एन। हो गए दो चीजें। अब हम इसका तीसरा रूल डिस्कस करेंगे बेटा कि आर्टिकल एन कहां पे और इस्तेमाल होगा। देखो बेटा थर्ड यूज एब्रीविएशंस, पूरा दिमाग रखना आपने। मैंने कल भी ये लिखाए थे वहां पे एब्रीविएशंस और आज भी इस रूल में निकाला। एब्रीविएशंस बिगिनिंग विद कंसोनेंट लेटर्स, कंसोनेंट लेटर्स से जो शुरू हो जाते हैं बट हैविंग वावेल साउंड, बट हैविंग वॉवेल साउंड, लेकिन उनकी साउंड वावेल होगी। ये शुरुआत एब्रीविएशन जो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन साउंड वावेल होगी, उधर भी बेटा हमें एन इस्तेमाल करना है। और देखो फॉर एग्जांपल आई से एमएलए, जब हम एमएलए को प्रोनाउंस करेंगे एम साउंड निकलते हैं एमएलए, तो इट बिकम्स एनएमएल। हाँ बिल्कुल ये एब्रीविएशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एब्रीविएशन की बात कर रहा हूं। एम बेसिकली कंसोनेंट लेटर है। करेक्टर अगर हम इसका देखेंगे इट इज कंसोनेंट बट इट इज साउंड बिगिनस विद ए वॉवेल, लेकिन इसकी शुरुआत वॉवेल से होती है। एम एम पहले प्रोनाउंस होता है एमएलए, तो इसके साथ एम लगता है। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल भी मैं देता हूं बेटा मेरा एन एम में, इसके साथ भी लगेगा ई से आ साउंड से प्रोनाउंस होगा। नंबर थर्ड एन एल एल बी, एल एल व्हेन यू से एल ई आ साउंड पहले निकलती है तो एल नहीं तो कंसोनेंट था। And SHO, when you say SHO, never say SHO, साउंड की स्टार्ट होती है, वावेल साउंड है, तो वावेल साउंड से। तो इन एब्रीविएशंस के साथ भी बेटा मेरा क्या होता है, एब्रीविएशंस जितने भी थे, ये वर्ड अगर हम करेक्टर की बात करें कंसोनेंट है, एम भी कंसोनेंट है, एल भी कंसोनेंट है, एस भी कंसोनेंट है, ये एब्रीविएशन सब कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका जो साउंड शुरू हो जाता है एम साउंड से हो जाता है वावेल, इसका अ से शुरू होता है, अ से एलएलबी स्टार्ट होता है, एलएलबी एल व्हेन यू से फर्स्ट आप अ को प्रोनाउंस करते हैं एलएलबी, तो वहां पे वो एब्रीविएशंस जो कंसोनेंट से शुरू हो जाते हैं लेकिन उनकी साउंड वावेल से शुरू होती है, उधर भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा मेरा, ये थे तीन आपको यहाँ पे रूल्स जिनकी बेस पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा मेरा ये देखो आप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी आपको इससे आगे नहीं पढ़ा है कि अब अगर इस कॉमन नाउन से पहले, इस कॉमन नाउन से पहले अगर मैंने ए का इस्तेमाल किया, ठीक है बेटा मेरा, इस कॉमन नाउन मैन से पहले द का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन मुझे कल एक बच्चे ने भी पूछा था कमेंट्स में, उसने मुझे पूछा था कि सर ये क्या मसला है। अभी हम आर्टिकल द पे जब कल बात करेंगे तब हम दिखाएंगे कि ये यहां पे मैंने बेसिकली दैट इज अ डिफरेंट आर्टिकल, ये कंसेप्ट तो मैंने आपको दिया है। अब ये जब आर्टिकल रिपीट हो जाता है तो फिर इसके साथ दैट इस्तेमाल हो जाता है, जब कॉमन नाउन अगर कहीं रिपीट हो जाए। ये हम डिस्कस करेंगे हमारे कल के इसमें लेक्चर में कि मैंने यहां पे इस कॉमन नाउन के पहले क्यों दैट लिखा था और इस कॉमन नाउन से पहले दैट क्यों लिखा था। फिलहाल हमारे यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, वहां तक कि हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि आई सा अ मैन इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन, सिंगुलर इन कैरेक्टर एंड द साउंड इज साउंड बिगिंस विद अ कंसोनेंट। और ये वाला ही वाज हैविंग एन अम्ब्रेला इज अ सेकंड पॉइंट, ओके, ही वाज हैविंग एन अम्ब्रेला इज अ सेकंड सेंटेंस एंड अम्ब्रेला इज आल्सो अ कॉमन नाउन एंड बट सिंगुलर इन फॉर्म बट इट इज साउंड बिगिंस विद अ वावेल, और इसकी साउंड जो है वावेल से शुरू हुई। ये दो चीजें हमने आज डिस्कस की है। कल हमने आ के बारे में किया था, आज हमने एन के बारे में किया है, और कल के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आर्टिकल द, जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई सर हैज यूज्ड आर्टिकल द विद अ कॉमन नाउन मैन। ये हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क।